آج جھوٹے کیسز کی سیریز کا ایک اور کیس PHQ حملہ کیس عمران خان صاحب کے اور دیگر PTI کے کارکنان اور ان رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، ان کے خلاف یہ کیسز جاری و ساری ہیں اور ان کے خلاف یہ کیسز نہیں چلائے جا رہے جن کے خلاف بطور آئی جی پنجاب ان کے انریفیوٹیبل ایویڈنس بھی تھے اور ان کو کیونکہ انہوں نے PTI کو چھوڑ دیا اور سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، لہذا ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور صرف قانون PTI کے سربراہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی، ان کے کارکنان اور ان رہنماؤں کے لیے ہے جو کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج پھر وہی سرکاری گواہان پیش کیے گئے، جیبوں سے 10-10 فٹ کے ڈنڈے برآمد کروائے گئے اور ایک ڈٹو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلی ہے۔ جس طریقے سے ٹرائل چلا جا رہا ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر، جہاں پہ صحافیوں کو بھی پک اینڈ چوز کی جاتی ہے اور آج کے جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں صحافیوں کو عمران خان صاحب کے پاس جا کے یا ان کے ساتھ میڈیا انٹریکشن کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کا بھی داخلہ جو ہے پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اوپن کورٹ ٹرائل کی درخواست کی ہے جو کہ منڈے کو توشہ خانہ 2 میں لگی ہوئی ہے، اور اس دن جو ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے۔ 20 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سے ٹرائی کیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ آج عمران خان صاحب نے وکلاء صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے ان 3 لیٹرز میں جو کانٹینٹس ہیں ان کا اعادہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے تینوں خطوط کے مندرجات پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہیں اور وہ اوپن لیٹر ہے، اور اوپن لیٹر جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کو نامہ بر بنائیں، کیونکہ نامہ بر شاید بعد میں ملے بھی نہ، لہذا اوپن لیٹر پوری پبلک کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی ہائی کمان، جس کے اوپر پاکستان کے انٹیلیجنسیا، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے سیاستدانوں کو غور کرنا ہوگا۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، یہ کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پہ اگر پاکستان کے اس وقت ذمہ داران نہیں سوچیں گے تو پاکستان کو خدا نخواستہ اس کا نقصان پہنچے گا، عوام کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارے KP اور بلوچستان پہ بڑھنے والی تیزی سے بڑھنے والی دہشت گردی اداروں کی طرف سے اپنے جو ان کی جاب ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس سے ہٹائے جانے پہ اور ان کی توجہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے پہ لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں چاہے وہ عدالتیں ہوں، پاکستان میں چاہے وہ پولیس ہو یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، ان تمام کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو کرش کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی میں جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا، عمران خان صاحب کا اغوا پوری دنیا نے دیکھا، سپریم کورٹ نے اس کو گرفتاری کو اغوا قرار دیا، انلیگل ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جو ریمارکس آئے ہیں ان پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک آزاد مشت جج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس سے بڑھ کے کیس کے بارے میں ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جب تک وہ پوری پارٹیوں کو نہیں سنتے۔ یہ کہنا کہ 9 مئی میں یہ ہوا یا 9 مئی میں وہ ہوا، یہ بات فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی۔ ججز کے ریمارکس پبلش ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں 9 مئی کا ملزم گردان رہے ہیں، بلکہ
हालांकि ये बात जो है ये हकायक सब मुलज़म गर्दान रहे हैं, बल्कि हालांकि ये बात जो है ये हकायक सबके सामने है कि 9 मई को मैं और नईम भाई तो खासकर जो कि उस दिन उस ब्रूटैलिटी का निशाना बने, हम लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने दीगर वकला के साथ मौजूद थे। वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोड़ फोड़ की गई, वहां पे कमरों को जो बायोमेट्रिक रूम होता था पुरानी हाईकोर्ट का उसको तोड़ा गया, बाहर दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। नईम भाई समेत बहुत सारे वकला को शदीद चोटें आई। आज तक उस पे पर्चा दर्ज करने के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज चुराई गई। सीसीटीवी फुटेज किसने चुराई? इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसका हुक्म किसने दिया? इसीलिए तो हम जुडिशल कमीशन की मांग करते हैं कि 9 मई और 24 नवंबर को होने वाले हादसा जो है, जब तक उनका एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन फैसला नहीं करेगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। हमारा ये इस्तदलाल है और हम उसको मेंटेन करते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, जिसमें लोगों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। 26 नवंबर को हमारे नहत्ते और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया, जख्मी किया गया, उनको मिसिंग किया गया। हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से रियासत से आइन और कानून के मुताबिक सलूक मांगते हैं। हम अदालतों से अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो कमेटी कोर्ट ट्रायल का केस सुन रहा है, उसके रिमार्क्स हौसला अफजा नहीं है। उसके रिमार्क्स ऐसे हैं जिनसे यह तासर मिलता है कि सिविलियन राइट्स की शायद पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है। अदालतें, खासकर आला अदालतें, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों के इज्जत, माल, जान, आबरू की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन की जाए। बदकिस्मती की बात है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी में नाकाम नजर आते हैं। शहरी नौहा कनाह हैं, पाकिस्तान के मासूम नहत्ते शहरी जिनकी सिर्फ गुनाह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कौज के साथ खड़े। उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन वर्कर्स के साथ जो मामला हुआ वो सबके सामने। पाकिस्तान ने दुनिया भर से मुआहदे साइन किए हैं जिसमें टैक्स के रिबेट्स और कंसेशंस ली जाती हैं। इस वादे के ऊपर के रियासत को पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको रियासत आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। हमने ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है, जो कि किसी इलाके, किसी मुल्क, किसी पे महदूद नहीं रहता, उसको दुनिया के सामने लाने का जो हमारा फैसला है उसी बुनियाद पे है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायद आज़म ने फलस्तीन का जो कॉज था, जो कि आज तक हमारी स्टेट पॉलिसी है, वो ये है कि हम फलस्तीन को ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर फलस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हैं। और ये हमारी रियासती पॉलिसी 1947 से आज तक है, जिसपे हम अमल पैरा हैं। हम वही बुनियादी हकूक की हिफाजत चाहते हैं। 30 साल सियासी जमातों, आज़ाद मीडिया के वर्करों और सिविल सोसाइटी की एक जद्दोजहद, जिसमें कुछ जमहूरियत बाकी आई थी, कुछ अदलिया आज़ाद हुई थी और आज़ाद मीडिया आया था, ये सारे रिवर्स हो गए। आज फिर वही फसाई दौर है। आज पीका की शक्ल में काले कवानीन आ रहे हैं, जिसने मीडिया को गैर किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पहले ही कतगन लगी हुई थी। अब इंटरनेट को निशाना मश बना के 1.7 बिलियन से ज्यादा, तकरीबन $2 अरब तक का नुकसान जो है वो कर दिया गया है। और अभी तक पाकिस्तान में जो है इंटरनेट उस शक्ल में बाहर नहीं हुआ। और अगर इस इंटरनेट की शक्ल में होगा तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीख की लो तरीन सतह की। लिहाजा जब तक मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी, टेररिज्म खत्म नहीं होगा, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और मुल्क इन्वेस्टमेंट के जरिए आगे बढ़ेगा।
मुल्क इन्वेस्टमेंट में तब होती है जब आप ये लोगों के हकूक, लोगों की इज्जत, जान, माल, आबरू महफूज रखें। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पे 2.5 पस्त सतह पे चला गया। पाकिस्तान के मुआशी इशारिये एक अलार्मिंग सिचुएशन को जो है वो जाहिर करते हैं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, इंडिपेंडेंट पस्त सतह पे चला गया। पाकिस्तान के मुआशी इशारिये एक अलार्मिंग सिचुएशन को जो है वो जाहिर करते हैं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, इंडिपेंडेंट जो एनालिसिस है, $45 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान रियासत को हो चुका है। 45 अरब डॉलर का नुकसान, रुपयों की बात नहीं। पाकिस्तान में जो जिस वक्त फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाली फ्रॉडुलेंट हुकूमत है, फ्रॉडुलेंट पार्लियामेंट है, फ्रॉडुलेंट जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और सदर हैं, उनका मफाद और पाकिस्तान का मफाद आपस में टकराता है। यह टकराव पाकिस्तान के आम शहरियों से के मफादात से बराह रास्त टकराव, जहाँ पे पाकिस्तान के आम शहरियों का मफाद जो है वो होंगे, वहाँ पे इनका नुकसान हो। इसीलिए आम शहरियों के एहसासात का, उनके हकूक का, उनकी बुनियादी जो फराइज है रियासत के, इसलिए उसकी परवाह नहीं है कि फॉर्म 47 के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ये हुकूमत कायम। ये हुकूमत अवामी हमायत पे मारज़ वजूद में नहीं आई। इसीलिए हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज को, असद कैसर साहब और अपनी टीम को, आज इमरान खान साहब ने ये दोबारा हिदायत दी है, ज्यादा मुतहरक होने का कहा है उमर अयूब साहब को और उनकी सरबराही में जो हमारा वफद है, कि आप अपोजिशन जमातें जिनमें शाहिद खान साहब हैं, फजल रहमान साहब हैं, महमूद खान चकजई साहब हैं, GD है, जमात इस्लामी और वो तमाम मारंग बलोच, खासकर मारंग बलोच और जो दूसरे हमारे नेशनल लीडर हैं, उनके साथ एंगेज हों, जो कि इस इलेक्शन को फ्रॉड समझते हैं। हम उनके साथ मिल के रमजान के बाद एक एहतजाजी या एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम दोस्तों को आज ये आपके थ्रू जो है मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने तमाम जमातों को पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए और ह्यूमन राइट वायलेशन की रोकथाम के लिए इकट्ठा होने की जो है आज मैसेज दिया है। और इंशाल्लाह हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इसको आगे लेके जाएगी। इसके अलावा आज जो पार्टी की सतह पे जो फैसले हुए हैं, सलाम नमस्ते खेर साहब हमारे MN हैं, उनको पॉलिटिकल कमेटी में शामिल कर दिया गया है इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक। और कल जो हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि जुमेरात वाले दिन जो सियासी ज़ोमा होते हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज से, उनकी मुलाकातें नहीं 5 महीने से करवाई जाती, बच्चों से बात नहीं करवाई गई, इन स्पाइट ऑफ दैट के कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बारे में हम कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर ये कंटेम्प्ट हम डाल रहे हैं। उसके अलावा जो नशर व अशात की ये जो तशहीर हो रही है सरकारी फंड के ऊपर, ये जो सल्तनत राय इंडिया बना दिया है, इसकी रोकथाम के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप सरकारी पैसा अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी पे हम जो है कल हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बाकी सारों के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट पिटीशन कल फाइल करेंगे और वो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का खुला मजाक उड़ाया गया। अब मैं नई भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकी कुछ चीजों के ऊपर रोशनी डालें।